چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت سرچ آپریشن متوقع۔ پنجاب پولیس نے ایک بار پھر زمان پارک کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اہلکار نہر کے دوسرے جانب پہنچ گئے۔ کارکنوں کو روکنے کے لیے زمان پارک سے متعلقہ تمام راستے سیل۔ پولیس کی بھاری نفری عمران خان کے گھر کے باہر موجود۔ مئی کو قوم کی توہین کرنے والے تمام ذمہ داروں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ایسے واقعات کی دوبارہ کسی قیمت پر اجازت نہیں دے سکتے۔ شہداء، مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں، سرکاری اہلکاروں اور پاکستان کے عوام کے لیے حوصلہ اور فخر کا باعث ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سیالکوٹ گیریزن کا دورہ۔ دہشت گردوں کو 24 گھنٹے میں حوالے کیا جائے۔ وزیر اطلاعات عامر بھیر کا زمان پارک میں 30 سے 40 دہشت گردوں کو پناہ دینے کا دعویٰ۔ پریس کانفرنس میں کہا، انٹیلیجنس اطلاع ہے آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 دہشت گرد زمان پارک میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، دہشت گردوں کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا۔ 3400 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ 254 مقدمات درج ہے۔ شناخت کا عمل جاری ہے۔ اب کسی نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا تو فواد چودھری سے زیادہ تیز دوڑائیں گے۔ ہماری خواتین جیلوں میں پولیس کی زیادتیوں کی زد میں ہیں۔ پاکستان تباہی کے راستے پر نکل گیا۔ ابھی بھی وقت ہے بیٹھ کر بات کریں اور مسئلے کا حل نکالیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا ذمہ داروں کو پیغام۔ کہا، 27 سال میں کبھی پرتشدد واقعات کی بات کی اور نہ ہی کبھی تقریر میں کبھی کسی کو قائل کیا۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں فوج کا دفاع کیا کیونکہ میں جانا پہچانا چہرہ تھا۔ کسی اور پاکستانی کا نام بتائیں جس نے میری طرح فوج کا دفاع کیا ہو۔ ہمارے 25 شہری شہید، فائرنگ سے 700 سے زائد زخمی ہوئے۔ 9 کے واقعہ میں نامعلوم افراد کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہے۔ مئی کو ریاست اس کی علامتوں اور حساس تنصیبات پر حملے ہوئے جس کی جڑیں عمران نیازی کی تقاریر کی مندرجات میں پوشیدہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ کہا، عمران نیازی نے اپنی سیاسی تحریک کو حق اور باطل کے درمیان جنگ قرار دیا۔ عمران نیازی نے موقف کی پذیرائی کے لیے آزادانہ طور پر مذہبی تصور کشی کی۔ مسلسل مسلح افواج، آرمی چیف کو بدنام کیا اور حملے کیے۔ حالیہ
हालिया वाकयात की मनसूबाबंदी इमरान खान ने की। सिविल तंजीमात पर तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ सिविलियन और फौजी तंजीमात की तोड़ फोड़ पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया के बाद किसी किस्म का इब्हाम बाकी नहीं रहा। ये मुल्क दुश्मनी है और मुल्क से बगावत के जुमरे में आता है। मुठ्ठीभर मुसल्लह जत्थों की कार्रवाई थी जो इमरान खान के कहने पर हुई। जमान पार्क में बैठकर मनसूबाबंदी की गई। जहलम शहीदों गाजियों का मस्कन है। पाक फौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सीनियर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की जमानत का तहरीरी हुक्मनामा मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई को जो वाकयात पेश आए उन पर हर शख्स रंजीदा है। वाकयात काबिल मजम्मत है। शफाफ तहकीकात करके मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ 27 साल का सफर तमाम। आमिर महमूद कयानी का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, GHQ और कोर कमांडर हाउस का वाकया अफसोसनाक है। कभी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मेरे दादा और खानदान आर्मी से ताल्लुक रखते हैं। 9 मई के वाकयात ने ज़ाती तौर पर मुझे तकलीफ पहुंचाई। मुझ पर दहशतगर्दी के 8-9 सियासी पर्चे दर्ज है। पाकिस्तान बहरान में है। ये PDM की मेहरबानियां हैं। इमरान खान ने सारी जिंदगी हमें अदम तशद्दुद का दर्स दिया। PTI इस दिन छोड़ूंगा जब इमरान खान छोड़ेंगे। सदर PTI सिंध अली जैदी की पार्टी छोड़ने की खबरों की तरतीब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फौज हमसे है और हम फौज से है। 9 मई को जो कुछ हुआ इसकी मसम्मत करता हूँ। PTI वो थी ही नहीं जो वाकयात में नजर आए। पाकिस्तान के तमाम इदारे हमारे हैं। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कायम होने वाला अमन गैर मामूली है। क्या हमारी क़यादत भी ईरान और सऊदी अरब जैसी अजमत का मुजाहिरा कर सकती है? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का एक बार फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करने का मशवरा। कहा, कोई सियासी जमात कभी मुल्क मुखालिफ नहीं रही और ना ही गद्दारों पर मुश्तमिल है। सबसे गुजारिश है, ठंडे और गहरे सांस ले। मुक़्तदर और सियासी हलकों में बहुत से काबिल लोग को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। रोज़मर्रा के वाक़यात और सख्त बयानबाजी लोगों की सोच को धुंधला देती है। हमें सजा और 60 अरब की करप्शन वाले का इस्तकबाल। ऐसे अदल का कौन एहतराम करेगा? कायद नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सवाल। ट्वीट में लिखा, बेटे से चंद हजार दिरहम तनख्वाह ना लेने पर मुझे नाअहल करवा कर जेल फेंक दिया गया। दूसरी तरफ एक साबित शुदा करप्ट को सादिक और अमीन बनाकर पेश किया जा रहा है। PTI की जानिब से अवामी पावर शो करने का फैसला।
कल मुरीदके में जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत टिकट होल्डर्स इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। टिकट होल्डर्स को टास्क, मुरीदके में जलसा हर सूरत होगा। इमरान खान की टिकट होल्डर्स को तैयारी करने की हिदायत। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज और कल बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। आंधी और झक्खड़ चलने के इम्कान। सिंध के बलाई इलाकों सखर, जैकबाबाद और लाड़काना में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तला है कि आर्मी तंसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द जमान पार्क में पनाह लिए हुए हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आमिर मीर का कहना था कि PTI से दरख्वास्त है कि 24 घंटे में इन दहशतगर्दों को पंजाब पुलिस के हवाले किया जाए, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आमिर मीर का कहना था कि फैसला हो गया है कि दहशतगर्दों का ट्रायल फौजी अदालत में होगा। 3400 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। 254 मुकदमा दर्ज है। शनाख्त का अमल जारी है। अब किसी ने रियासत की रिट चैलेंज की तो याद रखें, फवाद चौधरी से ज्यादा तेज दौड़ लगाना पड़ेगी। PTI से ताल्लुक रखने वाली खवातीन दहशतगर्दी के लिए उकसाने में मर्दों से भी आगे है। PTI से ताल्लुक रखने वाले शरपसंदों ने मिलिट्री तंसीबात पर हमले किए। इन वाकयात की मनसूबाबंदी पहले से की गई थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि 9 मई को कौम की तौहीन करने वाले तमाम जिम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और ऐसे वाकयात की दोबारा किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज सियालकोट गैरिजन का दौरा किया, जहाँ उनका इस्तकबाल कोर कमांडर गुजरावाला ने किया। गैरिजन आमद पर आर्मी चीफ ने शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा को शानदार खिराजे अकीदत पेश किया, जिन्होंने कौम के फख्र, इज्जत और वकार के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि शोहदा हमारे माथे का झूमर है, जिनसे आखिरत में आला मुकाम का वादा किया गया है। पाकिस्तानी अवाम के दिलों में शोहदा का अजीम मुकाम हमेशा कायम रहेगा। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज तमाम शोहदा और उनके अहल खाना को हमेशा मुकद्दम रखते हैं और मुस्तकिल तौर पर इनकी अजीम कुर्बानियों को इंतहाई इज्जत और वकार की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी को भी शोहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। शोहदा, मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सरकारी अहलकारों और पाकिस्तान के अवाम के लिए हौसला और फख्र का बाइस है। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि हाल ही में एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पेश आने वाले अलमनाक वाक़यात की दोबारा किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ ने रैंक एंड फाइल के सामने इस अज़म का एक बार फिर इयादा किया कि यौम सयाह 9 मई पर कौम की तौहीन करने वाले तमाम जिम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ ने मातहत फॉर्मेशंस के मेहनत, लगन, बुलंद हौसले और पेशा वराना महारत को सराहा, जबकि अफसरान और जवानों के साथ बातचीत के दौरान आर्मी चीफ ने फौज के पेशा वराना महारत और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस बशमूल प्रोपेगेंडा वारफेयर से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी पर तवज्जो मरकूज रखने पर जोर दिया।
और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा है कि अभी भी वक्त है, बैठकर बात करें और मसले का हल निकाले, जो सिर्फ इलेक्शन की सूरत में ही निकलेगा। कौम से अपने वीडियो खिताब में इमरान खान ने दावा किया है कि मैंने और पीटीआई के किसी रहनुमा ने कभी पुरतशद्दुद वाक़यात की हिदायत नहीं की। मेरे घर पर मेरी गैर मौजूदगी में छापा मारा गया, औरतों से बदतमीजी और घरों में दाखिल होकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि उन सारी हरकतों की वजह से नफरतें फैलाई जा रही हैं। चोरों की खातिर ये सब करने अपना मुल्क तबाह होते देख रहा हूँ। मैंने या क़यादत ने 27 साल में कभी पुरतशद्दुद वाक़यात की बात की और ना ही कभी तकरीर में कभी किसी को कायल किया। उन्होंने दावा किया, हमारे पास 9 मई के वाक़यात में किसी के मुलव्विस होने के शवाहिद हैं, जिन्हें हम लेकर हाई कोर्ट जा रहे हैं और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करेंगे। इमरान खान ने सवाल किया कि इस्लामाबाद में अदालती पेशी के मौके पर जब कारकुनान थोड़े आगे बढ़ते थे तो पुलिस उन पर शेलिंग करती थी, मगर लिबर्टी से कोर कमांडर लाहौर ऑफिस कारकुनान पहुंचे मगर किसी ने नहीं रुका। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, यह सब नामालूम अफराद थे जो हमारे कारकुनान की सफ़ों में शामिल हुए। उनका कहना था कि मियाँ वाली एयरबेस को जब जलाने की कोशिश की गई तो हमारे कारकुनों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पेशावर रेडियो पाकिस्तान की तरफ तो कोई मुजाहरा नहीं था, ना ही वहाँ कोई था। इमरान खान ने दावा किया कि 9 मई को फायरिंग से हमारे 25 लोग शहीद जबकि 700 से ज्यादा गोलियां लगने से जख्मी हुए, जो अस्पतालों में जेर इलाज हैं। खवातीन समेत हमारे 7,500 कारकुनों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला हुआ है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब की जमान पार्क में दहशतगर्दों की मौजूदगी के दावे पर इमरान खान ने कहा, मेरी भी जान को खतरा है। आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ आए और सर्च वारंट लेकर आए ताकि हम भी देखें दहशतगर्द कौन है। उन्होंने कहा, हम आपको सारे घर की तलाशी देंगे, हमारे घर में दाखिल होने का बहाना ना बनाएं। पीडीएम को फायदा करवाने के लिए अब हालात को मजीद खराब नहीं करें। अभी भी वक्त है, बात करके मसला हल करें और मसले का हल सिर्फ इलेक्शन है। इमरान खान ने कहा कि ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फौज को आमने सामने खड़ा कर रहे हैं और ये कामयाबी से कर रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि पूरी दुनिया में फौज का दिफा किया क्योंकि मैं जाना पहचाना चेहरा था, मेरी आवाज बाहर जाती थी। उन्होंने कहा कि किसी और पाकिस्तानी का नाम बताएं जिसने मेरी तरह फौज का दिफा किया हो। बाहर लॉबीज बैठी हुई हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान की फौज कमजोर हो। उनका कहना था कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं एक आजाद शख्स हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई को रियासत, इसकी अलामतों और हसास तनसीबात पर हमले हुए जिसकी जड़ें इमरान न्यासी की तकारीर के मंदरजात में पोशीदा है। ट्विटर पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान न्यासी ने अपनी सियासी तहरीक को हक और बातिल के दरमियान जंग करार दिया। इमरान न्यासी ने मौक़िफ़ की पजीराई के लिए आज़ादाना तौर पर मजहबी तसव्वुर कशी की, मुसलसल मुसल्लह अफवाज, आर्मी चीफ को बदनाम किया और हमले किए। वज़ीर आज़म का कहना था कि बहुत चालाकी से हकीकी आज़ादी के नारों के साथ गिरोह तैयार किया गया। गिरोह तैयार करने का मकसद इन्हें तशद्दुद पर उकसाना था। मुशाहिदा 9 मई को सामने आया, उनकी तकरीरें सुनी, आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी इमरान खान ने की और सिविल तनसीबात पर तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ सिविलियन कवानीन के तहत कार्रवाई होगी, जबकि फौजी तनसीबात की हदूद आर्मी एक्ट है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास का वाज़ेह एलामिया जारी हुआ था। इसके तहत किसी किस्म का इबहम बाकी नहीं रहा कि 9 मई कौमी सानहा था और योम सयाह के तौर पर ऐलान किया गया है। उनका कहना था कि इमरान खान के उकसाने और सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत पीटीआई की क़यादत ने अपने मुसल्लह जत्थों को मुख्तलिफ फौजी तनसीबात, अस्पतालों और स्कूलों पर भेज दिया। उन्होंने कहा कि यह मुल्क दुश्मनी है और मुल्क से बगावत के ज़ुमरे में आता है। इसमें किसी तौर पर भी अवामी एहतजाज का तासुर नहीं था। मुट्ठी भर मुसल्लह जत्थों की कार्रवाई थी जो इमरान खान के कहने पर हुई। जमान पार्क में बैठकर मनसूबा बंदी की गई। उनका कहना था कि इमरान खान अपने बयानात और तकरीरों में 2 झंडे रखकर गुफ्तगू करते हैं और झंडे की तस्दीक करते हैं। इसी तरह पीटीआई के मुसल्लह जत्थों ने झंडे चलाए। जिस परचम को हम चूमते हैं और नीचे नहीं गिरने देते, इसको नजर आतिश किया गया और मुंह पर पीटीआई का स्कार्फ, निकाब और गलों पर पीटीआई के दुपट्टे थे।
पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जहलम शहीदों गाजियों का मस्कन है, पाक फौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब है। जमानत का तहरीरी हुक्मनामा मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई को जो वाकयात पेश आए उन पर हर शख्स रंजीदा है। पीटीआई तर्जुमान की हैसियत से समझता हूँ ये वाकयात इंतहाई काबिल शर्म थे और कभी भी नहीं होने चाहिए थे। फवाद चौधरी ने कहा कि इन वाकयात की तहकीकात होनी चाहिए और मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी आमिर महमूद कयानी ने तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर कयानी ने पीटीआई की बुनियादी रुकनीत से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि GHQ और कोर कमांडर हाउस का वाकया अफसोसनाक है। पाकिस्तान बहरान में है, PDM की मेहरबानियां है। आमिर कयानी ने कहा, मेरा फौज पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुक है, मेरा इमरान खान से ताल्लुक रहा है, एक अरसे से लाहौर नहीं गया, हम इदारे और रियासत का हिस्सा हैं। मियाँ वाली के वाकयात में भी मेरा नाम डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात ने ज़ाती तौर पर मुझे तकलीफ पहुंचाई। मैंने कभी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हमारी बका अल्लाह के बाद फौज के साथ जुड़ी है। जवान शहादतें दे रहे हैं, सबसे पहले अफवाज को हिट किया गया। सियासत इसलिए कर रहे हैं कि अदारों को भी मुलव्विस कर लिया है। आमिर महमूद कयानी ने कहा कि पीटीआई के साथ मेरा 27 साल का सफ़र है। पार्टी के साथ मैंने गुज़िश्ता माह तक मुसलसल काम किया। मेरे दादा और ख़ानदान आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं। 9 मई के वाक़यात ने मेरे ऊपर बहुत असर किया है। 9 मई का वाक़या बहुत तकलीफ दे था। 9 मई कौमी सानहे का दिन था। मुझ पर दहशतगर्दी के 8-9 सियासी पर्चे दर्ज हैं। तहरीक इंसाफ 1996 में ज्वाइन की थी। उन्होंने कहा कि 1.5 माह से लाहौर नहीं गया, कोई मीटिंग अटेंड नहीं की। अरब स्प्रिंग में भी वहाँ की फौज को पहले हिट किया गया। यह खतरनाक काम है। आज भी सरहदों पर रोज 3 से 4 शहादतें होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने पार्टी छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने कहा कि पीटीआई इस दिन छोड़ूंगा जिस दिन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पीटीआई छोड़ेंगे। 23 साल पार्टी को दिए हैं। हमारी पार्टी के अंदर से ऐसी घटिया बातें की जा रही हैं। अली जैदी का कहना था कि 9 मई को जो कुछ हुआ इसकी मजम्मत करता हूँ। पीटीआई वो थी ही नहीं जो इस दिन नजर आया। पाकिस्तान के तमाम इदारे हमारे हैं। मैंने पुरतशद्दुद वाकयात से कारकुनान को रोका। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि फौज हमसे है और हम फौज से हैं। रियासत के इदारों पर हमले की मजम्मत करता हूँ। इमरान खान ने सारी जिंदगी हमें अदम तशद्दुद का दर्स दिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कायम होने वाला अमन गैर मामूली है। क्या हमारी क़यादत भी ईरान और सऊदी अरब जैसी अजमत का मुजाहरा कर सकती है। उन्होंने कहा, कोई सियासी जमात कभी मुल्क मुखालिफ नहीं रही और ना ही गद्दारों पर मुश्तमिल है। तमाम स्टेक होल्डर्स को कहता हूँ वो दोबारा सोचें। सबको कहता रहा हूँ मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। सबसे गुजारिश है ठंडे और गहरे सांस लें। सदर का कहना था कि मुक्तदर और सियासी हलकों में बहुत से काबिल लोग को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। रोज़मर्रा के वाक़यात और सख्त बयानबाजी लोगों की सोच को धुंधला देती है। सियासी तारीख में बहुत से तजर्बात किए गए, बहुत से कलाबाजियाँ खाई गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सवाल किया है कि हमें सजा और 60 अरब की करप्शन करने वाले का इस्तकबाल, ऐसा अदल का कौन एहतराम करेगा। अपने ट्वीट में नवाज शरीफ ने कहा कि बेटे से चंद हजार दिरहम तनख्वाह ना लेने पर मुझे नाअहल करवा कर जेल फेंक दिया गया, जबकि दूसरी तरफ एक साबित शुदा करप्ट को सादिक और अमीन बनाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हमें सजा सुनाने वाले 60 अरब रुपए की करप्शन करने वाले शख्स का इस्तकबाल करते हैं, ऐसे अदल का कौन एहतराम करेगा। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि जिना हाउस पर हमले का दुख हुआ, इस तरह की हरकतों पर पाबंदी लगनी चाहिए। एक बयान में जहांगीर तरीन ने कहा कि हम पीटीआई के साथ इसलिए थे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे। तहरीक इंसाफ को अपनी जिंदगी के 10 साल दिए, लेकिन अब इमरान खान के साथ मेरा कनेक्शन टूट चुका है
اور میری عمران خان سے دوستی 2 سال پہلے ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناح ہاؤس پر حملے کا بہت افسوس اور دکھ ہوا، اس طرح کی حرکتوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ ملک میں ہونے والے جلاؤ گھیراؤ پر افسوس ہے۔ جناح ہاؤس کے ساتھ یہ کیا کیا گیا، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جناح ہاؤس پر حملہ کرے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ بھٹو، بے نظیر اور نواز شریف کو سزائیں ملی، لیکن ایسا کسی نے نہیں کیا۔ جن لوگوں نے یہ اقدامات کیے ہیں ان کو کافر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت نے کہا ہے کہ الیکشن ہو یا نہ ہو، پاکستان تحریک انصاف کو جلد اپنے مستقبل کا معلوم ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے۔ لاہور میں پاک فوج کی حمایت میں نکالی گئی ریلی کے شرکاء سے خطاب میں چودھری شجاعت نے کہا کہ جنرل عاصم منیر پاک فوج کے سپاہ سالار ہیں، جو بھی ان کے خلاف بات کرے گا وہ ملک کے خلاف بات کرے گا۔ 75 سال میں پہلا موقع ہے جو کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ آج جو ریلی نکالی گئی وہ کسی ایک جماعت کی نہیں، آج کسی سیاسی پارٹی کا نہیں، بلکہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اس پر سب جماعتیں متحد ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے جلسے کر رہے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف آفیشل، سیکرٹ اور ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور مقدمہ درج ہوں گے۔ ایک شخص لیڈر بنتا ہے اور لوگوں کو اکساتا ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ جس کو پارٹی چھوڑنی ہے چھوڑ کر چلا جائے۔ کراچی میں اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جو جاتا ہے اسے عزت اور پیار سے گیٹ تک چھوڑ کر آئیں گے۔ فردوس شمیم نقوی کا کہنا تھا کہ پارٹی چھوڑنے والوں پر خوش ہونا چاہیے، یہ نکلیں گے تو نوجوانوں کو موقع ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کا گن صاف ہو رہا ہے، شکر ادا کریں۔ اور پی ٹی آئی کی جانب سے عوامی پاور شو کرنے کا فیصلہ، کل مریدکے میں جلسے سے عمران خان خطاب کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت ٹکٹ ہولڈر اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عمران خان نے گجرانوالہ اور مریدکے کے ٹکٹ ہولڈرز کو ٹاسک سونپ دیے۔ ٹکٹ ہولڈرز کو گرفتاریوں سے بچنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مریدکے میں ہمارا جلسہ ہر صورت ہوگا، اگر حکومت کے لیے دفعہ 144 نہیں تو ہمارے لیے کیوں ہے؟ اجلاس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کی گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی رہنما اور ٹکٹ ہولڈرز کو پر امید رہنے کی نوید سناتے ہوئے کہا کہ یہ 2 ہفتوں کی بات ہے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ حکومت جو مرضی کر لے، تحریک انصاف کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو مزید کسی کیس میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں 31 مئی تک کی توسیع کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف 100 سے زائد کیسز میں گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اور اسٹیٹ کونسل عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کی جانب سے وکیل بیرسٹر گوہر عدالت میں پیش ہوئے۔ وفاق کی جانب سے کیسز کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے مہلت کی استدعا کی گئی، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے سماعت 31 مئی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے عمران خان کو مزید کسی کیس میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں 31 مئی تک توسیع بھی کر دی۔ القادری ٹرسٹ کرپشن کیس میں نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو کل نیب راولپنڈی پیش ہونے کا سمن جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان نیب تفتیش میں شامل نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ نیب نے عمران خان سے 19 کروڑ پاؤنڈ کی غیر قانونی منتقلی سے متعلق 20 سوالوں کے جواب طلب کر لیے۔ نیب کے مطابق عمران خان نے برطانیہ سے 19 کروڑ پاؤنڈ لا کر واپس ملزمان کو دیے اور مالی فائدے لیے۔ عمران خان نے 458 کنال زمین اور 28 کروڑ روپے حاصل کیے۔ نیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کل صبح 10 بجے نیب کے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے روبرو پیش ہوں گے۔ عمران خان 2 مارچ کے کال اپ نوٹس میں نہ پیش ہوئے، نہ ہی کوئی جواب دیا۔ عمران خان جان بوجھ کر نیب انکوائری سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ نیب نے عمران خان سے برطانوی کرائم ایجنسی کے ساتھ خط و کتابت سمیت پاؤنڈز کی فرینزنگ آرڈر کا ریکارڈ اور القادری یونیورسٹی سے ملنے والے تمام عطیات کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا، جبکہ القادری ٹرسٹ کو عطیات دینے والوں کے ریکارڈ سمیت دیگر متعلقہ ریکارڈ بھی طلب کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ القادری ٹرسٹ کیس میں نیب نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو ریکارڈ سمیت 24 مئی کو طلب کر لیا۔
इस हवाले से ट्विटर पर वीडियो पैगाम में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि नैब का मशकूर हूँ कि उसने मुझे भी 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान के साथ फरीक बना दिया है। पुलिस कई रोज से लाल हवेली और मेरी वालिदा वाले घर पर छापे मार रही है। उनसे कहना चाहता हूँ कि घरों में दाखिल होते हुए खवातीन का एहतराम को मलहूज़े खाते रखें। सारी कौम को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि अदलिया जीतेगी। चंद सौ लोग चंद घंटे घेराव के बाद जलील और रुस्वा होकर चले गए। फजल रहमान की 13 पार्टियों की रैली ने मकबूलियत का भांडा फोड़ दिया। जेल मेरा ससुराल है, मेरा बिस्तर बंद, अटैची केस तैयार है। उनके कहना था कि नालायक और गैर मकबूल हुकूमत से इदारे जितना दूर होंगे उतनी इज्जत पाएंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान की रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान की नजरबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने पीटीआई के दोनों रहनुमाओं की नजरबंदी का लदम करार देते हुए उनको फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा है कि इमरान नियाजी ने गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया है। इमरान खान की अना के लिए मुल्क को तबाह नहीं होने देंगे। मुर्तजा वहाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी शासिया मरी ने कहा कि 9 मई को शरपसंद जत्थों ने लाकानूनियत मचाई, मुल्की अमलाक हसास अदारों को नुकसान पहुंचाया। ये एक तकलीफ दे दिन था। इस तरह की शरपसंदी फैलाने वालों को आड़े हाथों लेना जरूरी है, वरना ये हरकतें मामूल बन सकती है। शाजिया मरी ने कहा कि इमरान नियाजी को अगर लगता है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर हम खामोश रहेंगे तो ऐसा नहीं है। हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर किसी सियासी जमात का हिस्सा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब ने कहा कि जब इमरान खान इक़्तिदार में था और जब नहीं है तो इस तरह की बातें करता है। ये बात दुरुस्त है कि अवाम महंगाई में घिरी हुई है। जैसे ही मौका मिला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई। 28 लाख खानदानों को BISP प्रोग्राम के जरिए रकम दी, जबकि सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का काम जारी है। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 70 कारकुनों की नजरबंदी मुअत्तल कर दी। अदालत की जानिब से नजरबंदी मुअत्तल होने वाले कारकुनान की तादाद 110 हो गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स में कहा कि खुदारा इस मुल्क को चलने दें। एक बंदा जमानत करवा कर बाहर निकलता है, आप गिरफ्तार कर लेते हैं। लोगों के हकूक पामाल ना करें। अब ना कोई जुलूस निकल रहा है, ना कोई जलसा है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने मजीद कहा कि अगर किसी ने जलाओ घेराव किया तो आप मुकदमा दर्ज करें। नजरबंदी क्यों कर रहे हैं? अदालत ने DC लाहौर को मुखातिब करते हुए कहा कि नजरबंदी के लिए शवाहिद होना जरूरी है। ये लोगों की बुनियादी हकूक का मामला है। आइन शहरियों की आज़ादी और जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करता है। बगैर किसी शवाहिद के शहरियों की नजरबंदी करना खिलाफ कानून है। सिर्फ DPO की रिपोर्ट पर किसी को शरपसंद कहकर नजरबंद करना कहाँ का कानून है? आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के बाद गुड टू सी यू की गूंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नक्शे कदम पर चलने लगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान IG इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि IG साहब, गुड टू सी यू। जज के IG से मुकालमे पर कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद के कह के गूंजने लगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमला केस में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मुल्जिम मुदस्सर का चालान समाअत के लिए जमा ना करवा सके।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला में साबिक वजीर आजम इमरान खान पर वजीराबाद में होने वाले हमला केस की समाअत हुई। मरकजी मुलजिम नवीद तैयब और वकास को जेल से अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत JIT मुलजिम मुदस्सर का चालान समाअत के लिए जमा ना करवा सके, जिस पर अदालत ने आइंदा पेशी पर चालान जमा करवाने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में असद कैसर और दीगर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। ATC जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि असद कैसर तो गिरफ्तार नहीं, उनका बताया गया है कि वो जल्द आ जाएंगे, जिस पर वकील शेर अफजल ने कहा कि अदालत अगर सिक्योरिटी फराहम करे और गारंटी दे कि गिरफ्तारी नहीं होगी तो आ जाते हैं। ATC जज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन नहीं मानी जा रही तो ATC तो फिर भी लोअर कोर्ट है। ये बात दुरुस्त है कि हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन पर अमल नहीं किया जा रहा। जज ने इस्तफसार किया कि अदालत को बताया जाए कि किस कानून के तहत असद कैसर और दीगर को आज इस्तिस्ना दिया जाए। वकील शेर अफजल ने कहा कि 4-5 दिनों तक तोसी दी जाए, हालात ठंडे हो जाएंगे, जिस पर ATC जज ने रिमार्क्स दिए कि 4-5 दिनों तक क्या गारंटी है कि हालात ठंडे हो जाएंगे। इस पर वकील शेर अफजल ने कहा कि अगर हालात ठंडे ना हुए तो PTI क़यादत अंदर जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में इराक के सफीर हामिद अब्बास लफ्ता की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। इराकी सफीर ने वजीर खारजा की जानिब से बिलावल भुट्टो को दौरा इराक की दावत भी दे दी। इराकी सफीर ने मुसलसल ताउन और हमायत पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और इराक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात मजहब और मुश्तरका इक़दार पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान कसीरुल-जहती शोबों में ताउन और आला सतह तबादला दो तरफा ताल्लुकात का हिस्सा है। पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में इराकी बहन भाइयों के साथ खड़ा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती निज़ाम के अगले मराहिल का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी 22 मई से 24 मई तक जमा होंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए भी कागजात नामजदगी 24 मई तक जमा किए जाएंगे। और अब आपको बताएंगे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और अहलकारों की इनामात से हौसला अफजाई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने साहिवाल, उकाड़ा, मुल्तान और बहावलपुर रीजन के 160 अफसरान और अहलकारों को 58 लाख से जायद कैश के इनामात और तारीफी इसनाद से नवाजा। SDPO सदर पाकपतन मोहम्मद असलम और SDPO मियां चन्नू खानेवाल नासिर अली साकिब को CC1 सर्टिफिकेट्स दिए गए। इंचार्ज CIA इकबाल टाउन इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भट्ट और इंस्पेक्टर राशिद अमीन भट्ट को 2 लाख फीकस दिए गए। इनामात हासिल करने वालों में 10 इंस्पेक्टर्स, 45 सब इंस्पेक्टर्स, 27 ASIs, 5 हेड कॉन्स्टेबल्स, 70 कॉन्स्टेबल्स और 1 SSA शामिल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि तमाम अफसरान और अहलकार पहले से ज्यादा मेहनत और फर्ज शनासी से फराइज अंजाम दे रहे हैं। बरवक्त तरक्कियों के लिए पुलिस सर्विस और प्रमोशन स्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया है। आइंदा चंद दिनों में 450 सब इंस्पेक्टर्स, 1300 ASIs और 2100 हेड कॉन्स्टेबल्स को तरक्की देंगे। उन्होंने कहा कि DSP रैंक पर भी महकमाना तरक्कियों का अमल जारी है। वासा में ठेकेदारों को नवाजने का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। वासा अफसरान को मिली भगत से ठेकेदारों को मुबैना तौर पर नवाजा गया। अफसरान ने तरक्याती काम मुकम्मल किए बगैर ठेकेदारों को अदायगियां कर दी। वासा में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तियों में DMD मियां मुनीर के मुलविस होने का इंकशाफ। आपको बता रहे हैं कि वासा में ठेकेदारों को नवाजने का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। वासा अफसरान की मिली भगत से ठेकेदारों को मुबैना तौर पर नवाजा गया।
افسران نے ترقیاتی کام مکمل کیے بغیر ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں کر دی۔ واسا میں ہونے والے مبینہ بے ضابطگیوں میں ڈی ایم ڈی میاں منیر کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ واسا میں ٹھیکیداروں کو نوازنے کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا۔ واسا افسران کو ملی بھگت سے ٹھیکیداروں کو مبینہ طور پر نوازا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ گاف کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی مسلم لیگ ہاؤس سے شروع ہو کر لاہور پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت سابق گورنر اور صدر پنجاب پاکستان مسلم لیگ چودھری محمد سرور اور چودھری شافع حسین نے کی۔ اب آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی ہدایت پر کرائم سین محفوظ بنانے کا عمل مکمل۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل کی فورینزک ٹیموں کے ہمراہ چناح ہاؤس آمد۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود، ایس پی انویسٹیگیشن صدر عبدالحنان بھی ساتھ تھے۔ پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری کے شعبہ کرائم سین انویسٹیگیشن سے ڈاکٹر ناصر، عبدالرحمان، اعظم خان اور ٹیم کے دیگر ارکان بھی موجود تھے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے کرائم سین کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کرائم سین یونٹ سمیت فورینزک ٹیموں نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو شواہد بارے بریفنگ دی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیت اللہ شریف اور غلاف کعبہ کے حوالے سے نمائش کا آغاز۔ غلاف کعبہ بنانے سمیت دیگر مفید معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قریب غلاف کعبہ کے حوالے سے نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں غلاف کعبہ بنانے سمیت غسل کعبہ میں استعمال ہونے والے برتن بھی رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ غلاف کعبہ اور بیت اللہ کے حوالے سے آنے والے زائرین کو مفید معلومات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ روزانہ ہزاروں زائرین نمائش کو دیکھنے پہنچ رہے ہیں۔ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ ہورڈنگ کی مبینہ کرپشن عروج پر۔ مین بولیوارڈ ڈی ایچ اے کیولری گراؤنڈ اور گردنواہ میں لگے ہورڈنگ بورڈز نے کنٹونمنٹ بائی لاز کی دھجیاں اڑا دی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ بورڈنگ کی مبینہ کرپشن عروج پر مین بولیوارڈ ڈی ایچ اے کیولری گراؤنڈ اور گردنواہ میں لگے ہورڈنگ بورڈز نے کنٹونمنٹ بائی لاز کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اہم خبر آئی ہے ناظرین، آپ کو بتائیں کہ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ ہورڈنگ کی مبینہ کرپشن عروج پر مین بولیوارڈ ڈی ایچ اے کیولری گراؤنڈ اور گردنواہ میں لگے ہورڈنگ بورڈز نے کنٹونمنٹ بائی لاز کی دھجیاں اڑا دی۔ اس پر بات کرتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ سے۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے گا۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے گا۔ جی ثاقب، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ ہاں جی بالکل، والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی ہورڈنگ برانچ میں اندھیر نگری چوپٹ راج والا معاملہ چل رہا ہے۔ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز مین بولیوارڈ ڈی ایچ اے، مین کیولری گراؤنڈ، والٹن روڈ، غازی روڈ پر لگے ہورڈنگ بورڈز کنٹونمنٹ بائی لاز کا منہ چڑھاتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب نوازشات مبینہ طور پر ہورڈنگ برانچ کے انچارج اور عملے کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے، جو کہ کھلے عام دھڑلے سے بائی لاز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور عملہ خواب غفلت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ اس کے اوپر سونے پہ سہاگا تو یہ ہے کہ کئی ایسے بل بورڈز بھی موجود ہیں جن کا اندراج محکمے میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور ان کی آمدن سیدھی عملے کی جیب میں جا رہی ہے۔ اور یہاں پر یہ ایک اہم چیز بتاتا چلوں کہ جب بھی کوہ نور نیوز چینل کی ٹیم نے ہورڈنگ برانچ کے انچارج شہباز الحق سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس موضوع پر موقف دینے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ جب بھی ٹیم ان کے آفس آتی تو یہ انچارج صاحب اپنی سیٹ سے غائب ہو جاتے۔ میرا خیال ہے کہ ہورڈنگ برانچ کا تمام عملہ سی ای او والٹن کنٹونمنٹ بورڈ سرکار
आतिफ सुल्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। जी जी, बहुत शुक्रिया साकिब, तफसीलात से आगाह करने के लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर शरपसंदी का मामला। जमान पार्क में 30 से 40 तक दहशतगर्द मौजूद होने की इत्तलात। जमान पार्क में एक मुमकिन ऑपरेशन। पुलिस इमरान खान के घर का घेराव कर चुकी है। जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। आम शहरियों को मुश्किलात का सामना। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर शरपसंदी का मामला। जमान पार्क में 30 से 40 तक दहशतगर्द मौजूद होने की इत्तलात। जमान पार्क में एक मुमकिन ऑपरेशन। पुलिस इमरान खान के घर का घेराव कर चुकी है। जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट करते चले कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर शर्त-पसंदी का मामला। जमान पार्क में 30 से 40 तक दहशतगर्द मौजूद होने के इत्तलात। जमान पार्क में एक मुमकिना ऑपरेशन। पुलिस इमरान खान के घर का मुकम्मल तौर पर घेराव कर चुकी है। जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। आम शहरियों को मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम, अपडेट कीजिए। जी जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जमान पार्क में मौजूद हूँ, इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर। और इस वक्त यहाँ पर आने वाले तमाम रास्ते पंजाब पुलिस की जानिब से बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और माल रोड की तरफ मस्जिद से आगे जो माल रोड का रास्ता है वहाँ पर तमाम पुलिस अफसरान को वहाँ पर ड्यूटी पर लगा दिया गया है। DIG सादिक साहब थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने अपने जवानों को तैयार किया। हर तरह के असले से वो लेस है। रबड़ की फायर मारने वाली गन भी आज उनके पास देखी गई है। केमिकल्स की गन भी उनके पास है। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ, वाटर कैनन की गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आंसू गैस की शेलिंग का सामान यहाँ पर लाया जा चुका है। और यहाँ पर किसी वक्त भी मुमकिन ऑपरेशन स्टार्ट किया जा सकता है। और DIG ऑपरेशन जो है इस वक्त वो गए हैं किसी मीटिंग में। सब पंजाब पुलिस के एहलकारों का ये कहना है कि उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे उनके अहकामात के बाद यहाँ पर जो वो ऑर्डर करेंगे उसके ऑर्डर के ऊपर हम अमल दरामद करना शुरू कर देंगे। और जमान पार्क के अगर अंदर की बात करते हैं तो जमान पार्क के अंदर आने वाले जो रास्ते बंद है वो पंजाब पुलिस जहाँ पे खड़ी है वो DIG साहब का जब ऑर्डर आएगा तो ये तमाम पुलिस इस वक्त जमान पार्क के अंदर हाथा में आ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आसिम, हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिम राजा की रिपोर्ट में। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेरे इंतजाम मुकामी होटल में इंटरनेशनल स्टूडेंट कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से आए स्टूडेंट ने शिरकत की। कन्वेंशन में 30 से जायद ममालिक के तलबा व तलबात शरीक हुए। कन्वेंशन में अफगानिस्तान, ईरान, श्रीलंका, चीन, सूडान, नेपाल, सोमालिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, फलस्तीन, यमन, नाइजीरिया के तलबा व तलबात ने स्टॉल्स लगाए और अपनी सकाफत को उजागर किया। इंटरनेशनल तलबा कन्वेंशन में पंजाब की पब्लिक सेक्टर और निजी जामियात के वाइस चांसलर भी मौजूद थे। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कन्वेंशन का मकसद मुकामी यूनिवर्सिटियों में आलमी रवाबत को बढ़ाना और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों में गैर मुल्की तलबा की तादाद यूनिवर्सिटियों की बैनुल अक़वामी दर्जा बंदी को बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। इंटरनेशनल तलबा कन्वेंशन मुकामी जामियात में गैर मुल्की तलबा को राग़ब करने में मददगार साबित होगा। कन्वेंशन में मुख्तलिफ ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले बैनुल अक़वामी तलबा की जानब से स्टॉल्स भी लगाए गए और सकाफती परफॉर्मेंस पेश की गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बैरून ममालिक से तलबा की आमद का रुझान हौसला अफजा है।
पंजाब की जामियात में उनको हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात हासिल हैं। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स में शील्ड भी तकसीम की और कामयाब इंटरनेशनल कन्वेंशन के इनेकाद पर चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनी। लाहौर के इलाके शादबाग से 65 साल खातून शमीम अख्तर की गुमशुदगी का मामला, लापता 65 साल खातून की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गुजरपुरा के इलाके करोल गांव से लगे सीसीटीवी कैमरे में लापता खातून को पानी पीते देखा गया। खातून के बेटे मोहम्मद सलीम के मुताबिक वालिदा का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। वरसा ने शमीम बीबी की गुमशुदगी के हवाले से इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त थाना शादबाग में दे दी। पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी। SHO शादबाग मोहम्मद नदीम ने शहरियों से लापता खातून को देखने की सूरत में इत्तला देने की अपील कर दी। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर के इलाके शादबाग से 65 साल खातून शमीम अख्तर की गुमशुदगी का मामला, लापता 65 साल खातून की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गुजरपुरा के इलाके करोल गांव से लगे सीसीटीवी कैमरे में लापता खातून को पानी पीते देखा गया। खातून के बेटे मोहम्मद सलीम के मुताबिक वालिदा का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। वरसा ने शमीम बीबी की गुमशुदगी के हवाले से इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त थाना शादबाग में दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट सीरीज के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान भारत टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका में हो सकती है। पाक भारत सीरीज के लिए पहला ऑप्शन इंग्लैंड और दूसरा ऑस्ट्रेलिया होगा। नजम सेठी ने कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया में हाउसफुल हो सकता है तो ठीक है, यह बड़ा अच्छा होगा। भारत के साथ टेस्ट सीरीज के लिए दुबई हमें सस्ता पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को भी हमने न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर रडार पर रखा है। एशिया कप के हवाले से उन्होंने कहा कि एशिया कप के लिए भारत को हाइब्रिड मॉडल दे चुके हैं। वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी को बचाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आगे आना होगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।